Hi everyone, a very good morning to all of you guys. And today we are come back with Macbeth Act 1 Scene 6. Okay, we have discussed two lectures of English grammar. Okay, that is the phrasal verbs and story writing. Okay, phrasal verbs are very important. They are very important. They are very obligatory. Okay, you have to like listen them very carefully, and you have to understand each and every phrasal verbs. Okay, to enhance the like to enhance your speaking English, to enhance your speaking skills. Okay, so you need to learn those phrasal verbs as well, and I'll very soon I'll come with another phrasal verb part 2. Okay, we'll conduct these phrasal verbs into parts. Okay, now let's talk about Macbeth. We have completed Macbeth till Act 1 Scene 5. Alright, we have discussed Macbeth till Act 1 Scene 5. Now children, what happened in Act 1 Scene 5? Let's see that. Okay, in Act 1 Scene 5 we have seen that the that place was that scene takes place on Inverness. Okay, where does that scene takes place? It takes place on Inverness, which is the castle of Macbeth, where the letter of Macbeth has came to Lady Macbeth. Okay, the letter of Macbeth has come for Lady Macbeth, where he has written all the things. Okay, that how Macbeth he met with the witches and how he became the Thane of Cawdor. Means this the journey from the meeting or from the meeting of witches till the Thane of Cawdor. He has written all the things to Lady Macbeth. All right, we have discussed this as well. Okay, she has just he has discussed all the things to her wife, and Lady Macbeth she decide to motivate Macbeth, okay, to fill the fire of king in Macbeth, okay, so that he can murder King Duncan and he can snatch that thorn. Okay, and in the scene when he arrives, who Macbeth, he arrives when he arrived. Okay, so she phrased who Lady Macbeth, she phrased him as the Thane of Cawdor and the king. Okay, she phrased with his present and future greatness. Okay, and she noticed that also that Macbeth is little confused, he's little nervous. Okay, so due to this she said that you are full of milk, you are very innocent. Okay, you need to arouse devilness in yourself. Okay, you need to arouse devilness in yourself. Okay, and she also advised him that in the outer covering you behave like an innocent flower. Okay, you behave like an innocent flower, but inside in you should have a serpent, you should have a snake. Means from outer coverage you are an innocent flower. Okay, you behave like an innocent flower, you behave like a noble person, but inside you have all that a devilness, all that craziness. Okay, so and after that Macbeth also says that we'll talk about this later. Then Lady Macbeth says that please Macbeth, try to look normal. Okay, do not express what is coming in your bosom, what is coming in your heart. Do not express that thing in your face, or do not express that thing on your face. Okay, and try to look normal, and rest leave on me, lest you leave on me. Resting is on me. And here this scene exuent, this Act 1 Scene 5, it like end up. Now let's see Macbeth Act 1 Scene 6. Now here Duncan has arrived in Inverness, okay, which is the castle, which is the palace of Macbeth. Okay, he has arrived into Inverness. Okay, and they all are standing in front of Inverness. Okay, and they are talking.
Now, why he has arrived in Inverness? Because Duncan want to take supper. He want to take dinner with Macbeth. Okay, he want to take dinner with Macbeth. So, just remember what he said in Act 1, Scene 5. He also said this in Act 1, Scene 5 that I'll come, please, means I'll come in your house to have dinner, okay, to spend some time, okay. So, we will be your guest tonight. He has said this thing, okay. So now this is the time when Duncan has come. He has arrived at Inverness at the palace of Macbeth, okay, to have supper, to have dinner, okay. So here, let's see the scene 6. What happened in scene 6? Here, Duncan along his son arrive at Macbeth's castle, Inverness, okay, where Lady Macbeth gave him a very warm welcome, okay. Lady Macbeth gave him a warm welcome, and the king find this place very pleasing, very calm. Means king finds Macbeth's castle, okay. किंग को जो डंकन है उन्हें मैकबेथ का कैसल कैसा लगा? वेरी पीसफुल, बहुत ईज उसमें थी, ऐसा लग रहा है, ठीक है. नाउ लेडी मैकबेथ ऑल्सो अश्योर्ड किंग दैट दे आर वेरी लॉयल टू देम, ओके. लेडी मैकबेथ ने भी किंग को ये सांत्वना दी कि दे आर वेरी लॉयल टू किंग, दे आर वेरी लॉयल टू देम, okay. Now they all behave that they are very loyal to their king. They are very happy because the king Duncan has arrived to their palace, okay. Means Lady Macbeth want to show her gratitude to Duncan, okay. And Macbeth, he also not Macbeth, sorry, Duncan, he also graciously accept the greetings of the Lady Macbeth, ठीक है. And one more very important thing, this king, okay, this scene, sorry, what I'm saying, ये जो scene है Act 1 Scene 6, this is filled with a figure of speech that is irony. Means this whole scene is ironical, ओके. पूरा सीन क्या है? ये आयरनी से भरा हुआ है. वाई आयरनी? बिकॉज डंकन थिंक ही पॉन्डर, डंकन को ये लगता है कि ये जो पैलेस है इन्वर्नेस, जो ये मैकबेथ्स का पैलेस है, ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही काम है. अभी जो हम स्पीच पढ़ेंगे डंकन की, तो डंकन कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल पैलेस है, बहुत ही प्यारा पैलेस है ये, ठीक है. बट उन्हें ये नहीं पता है कि इस प्यारे से पैलेस में क्या राज छुपा है, मतलब क्या चालाकी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की है, ठीक है. तो ये सीन क्या है? आयरॉनिकल है. मतलब डंकन पॉन्डर द पैलेस, ही पॉन्डर द कैसल वेयर ही विल किल इज ब्यूटीफुल. मतलब डंकन जहाँ मरने वाला है, जिस पैलेस में उसकी मौत होने वाली है, उसी पैलेस को डंकन क्या कह रहे हैं? Beautiful. And that's why this whole scene is ironical in nature. Make sure you remember this thing, very important line, okay. This scene is ironical in nature, means this whole scene is irony, okay. It is filled with irony. Let's see where this irony has, okay. So let's start Macbeth Act 1 Scene 6, okay. Let's see and let's discuss Act 1 Scene 6 of Macbeth, okay. Here Duncan and his attendants arrive at Inverness. Lady Macbeth welcomes them. Means Duncan and their attendants. Who are their attendants? Malcolm, Donald Bean, Banquo, and Lennox, Macduff, Ross, Angus, and some more attendants, okay. These all are the attendants, these all are the fellow with Duncan. So Lady Macbeth gave them a cordial, a very warm welcome, okay, in her Inverness, in her place, okay. Next,
अब hot boys and torches. Hot boy isn't a boy. Okay, hot boy ये जो लिखा है, this is hot boy. Okay, this is called hot boy, but isn't a palace, isn't a human being, isn't a boy. ये कोई boy नहीं है, ठीक है. It is an instrument. ये क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ वुड, जो किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है. इन हिंदी भी इससे शहनाई, बिल्कुल उसी की तरह, शहनाई की तरह इस तरीके का पोर्शन होता है. ओके, इस तरीके का पोर्शन होता है इसका. सॉरी फॉर माई ड्राइंग. ओके, सो यही होता है हॉट बॉय. ओके, हॉट बॉय कोई लड़का नहीं है, कोई आदमी, कोई इंसान नहीं है. ये एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, एक वुड का बना हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. एंड टॉर्चेस. अब यहाँ पे टॉर्चेस का मतलब क्या है? टॉर्चेस उस वक्त पे टॉर्चेस नहीं होती थी, इजंट इट. ओके, उस वक्त पे ऐसी टॉर्चेस तो होती नहीं थी, ऐसी वाली, है ना. ये टॉर्चेस कहाँ होती थी? टॉर्चेस का यहाँ पे मतलब है मसाल. जो मसाल होती है, जो पहले के मतलब राजा महाराजाओं के पास में मसाल होती थी, इस तरीके की मसाल. सॉरी. ओके, इस तरीके की मसाल की पॉन्डर बाई योरसेल्फ. ओके, इस तरीके इसमें आग होती थी, इजंट इट. तो वही यहाँ पे बताया गया कि हॉट बॉयज मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग ऑन. ओके, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं. एंड टॉर्चेस, क्योंकि पहले के दिनों में क्या होता था, राजा महाराजा कहीं भी जाते थे, जो राजा वगैरह हैं वो कहीं भी जाते थे तो शहनाइयाँ बजती थी. अपने इंडिया में ही देख लो, शहनाइयाँ बजती थी. सेम वहाँ स्कॉटलैंड में हो रहा है. ओके, वहाँ पे क्या हो रहा है? हॉट बॉयज मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो शहनाई है वो बज रही है. किसकी खुशी में? डंकन आ रही है. ओके, एंड टॉर्चेस मतलब मसाल जल रही है. मसाल यहाँ पे ये इंडिकेट करती है कि ये टाइम क्या है? नाइट का समय है. ये कौन सा वक्त है? रात का समय है. वेरी इंपॉर्टेंट. टॉर्चेस किस लिए यहाँ पे बताई गई हैं? टॉर्चेस ये बताती हैं कि किंग डंकन रात के समय आ रहे हैं, तभी तो वो डिनर करेंगे. डिनर कब किया जाता है? रात में किया जाता है. तो समझ लो. ओके, नाउ एंटर किंग डंकन, मैलकॉम, डोनाल्ड बेंक्यू, लेनॉन्स, मैकटफ, रॉस, एंगस एंड सम मोर अटेंडेंट्स. ये सारे लोग साथ में जाते हैं. डंकन जाते हैं. ओके, एंड उनके जो दो बेटे हैं, डोनाल्ड वेन, मैलकॉम, वो दोनों जाते हैं. ओके, नाउ मैलकॉम इज, हु इज ही? ही इज द किंग ऑफ क्यूम्बरलैंड. ओके, डोंट फॉरगॉट. ओके, सो कौन कौन जाते हैं? डंकन जाते हैं, मैलकॉम जाता है, उनका बड़ा बेटा, और डोनाल्ड वेन उनका छोटा बेटा जो है वो जाता है. बेंक्यू जाते हैं, लेनॉन्स जाते हैं, मैकटफ, रॉस, एंगस और कुछ और अटेंडेंट्स. ये सारे लोग जाते हैं साथ में. ओके, नेक्स्ट डंकन सेज. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्पीच, लेट्स स्टार्ट द सीन. डंकन सेज, दिस कैसल has a pleasant seat. The air nimbly and sweetly recommends itself onto our gentle senses. Okay, this castle has a pleasant seat. Means ये जो castle है इन्वर्नेस, कैसल किसका? मैकबेथ का कैसल. ये जो मैकबेथ का कैसल है, इट हैज प्लीजेंटली सीटेड. मीन्स ये बहुत ही शांत जगह पे सिचुएटेड है. हैच मीन्स हैज़, अ प्लीजेंटली सिचुएटेड. प्लीजेंट सीट मीन्स इट इज़ सिचुएटेड वेरी प्लीजेंटली. बहुत ही शांत वाली जगह पे सिचुएटेड है. द एयर निम्बली एंड स्वीटली रिकमेंड्स इटसेल्फ ऑन टू आवर जेंटल सेंसेस. और जो ये ब्रीज चल रही है, ये जो हवा चल रही है, ओके, जो ये पैलेस के चारों तरफ हवा चल रही है, इट लाइक अपील्स टू अस. ओके, विद दिस फ्रेश फ्रेगरेंस. nimbly and sweetly means with it fresh fragrance, it appeals. Recommends means it appeals to us for our, like for my gentle sense, for my calm sense. मतलब डंकन कहना चाह रहे हैं कि ये जो पैलेस है, ओके, जो ये मैकबेथ का पैलेस है, ये बहुत ही सुंदर सी जगह पे सिचुएटेड है. मतलब ये इतनी अच्छी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे हर तरफ हवा ही हवा चल रही है और बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है. ओके, बहुत ही फ्रेश फ्रेगरेंस आ रही है, जो कि हमारे जो सेंसेस हैं,
ओके हमारी जो बॉडी सेंसेस हैं उन्हें एक्टिव कर देती है, उन्हें एक्टिव कर देती है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको सीन। नेक्स्ट अब बेंक्यू बोलते हैं। बेंक्यू, हु इज बेंक्यू? वन ऑफ द फेलो मैन ऑफ मैकबेथ। ओके, हु इज बेंक्यू? वन ऑफ द फेलो मैन ऑफ मैकबेथ. So he says that, he says that this guest of summer, the temple haunting martlet, does approve by his loved Mansari. Means this guest of summer, this guest of summer मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मार्टलेट बर्ड की. मार्टलेट इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड. ओके, मार्टलेट एक टाइप की वर्ड होती है, तो यहाँ पे मार्टलेट की बात हो रही है. यू कैन सर्च इन द ऑन द लाइक गूगल. मार्टलेट इज अ टाइप ऑफ अ वर्ड. ओके, तो जो गेस्ट ऑफ समर मीन्स जो ये मार्टलेट चिड़िया है, ओके, इट इज़ ऑल्सो सिटिंग ऑन द चर्च. द टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट डज अप्रूव. मीन्स जो ये मार्टलेट चिड़िया है ये भी टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल का मतलब है चर्च. ओके, चर्च है यहाँ पे टेम्पल का मतलब. ठीक है, द मतलब ये जो मार्टलेट चिड़िया है इट इज़ सिटिंग ऑन द चर्च. ओके, इट इज़ सिटिंग ऑन द चर्च एंड दिस इज लाइक इट इज़ अप्रूविंग, इट इज़ प्रूविंग दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम. क्या कहना चाह रही है? देखो, मार्टलेट जो चिड़िया होती है इसकी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ओपन जगह पे रहती है. ओके, वो खुली जगह पे रहती है, वो किसी बंद जगह पे नहीं रहती. ठीक है, तो जो बेंक्यू है वो कह रहे हैं कि मार्टलेट चिड़िया एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी जगह सिचुएटेड है मैकबेथ का कैसल. तो द गेस्ट ऑफ समर मीन्स द मार्टलेट, द टेम्पल हॉन्टिंग डज अप्रूव बाय हिज लव्ड मैंसरी. मीन्स ये जो मार्टलेट वर्ड है ये इसने अपने नेक्स्ट जो हैं अपने घोंसले जो हैं वो कहाँ बना रखे हैं? चर्च पे बना रखे हैं. टेम्पल का मतलब चर्च है. देखो, स्कॉटलैंड जैसी जगह पे टेम्पल तो होंगे नहीं, बिकॉज दे आर नो हिंदूज, वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं बस, है ना. तो यहाँ पे जनरल सी बात है कि यहाँ पे क्या होंगे? चर्च होंगे. टेम्पल का मतलब है चर्च. तो ये जो मार्टलेट चिड़िया है इसने अपने घोंसले कहाँ बना रखे हैं? चर्च पे बना रखे हैं. और ये जो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये जो चिड़िया है ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. इट हैज़ प्रूव्ड, डज अप्रूव का मतलब इट हैज़ प्रूव्ड बाय हिज लव्ड मैंसरी. मीन्स बाय मेकिंग दिस लाइक इट दिस मार्टलेट हैज़ प्रूव्ड दैट दिस इज इट्स लाइक दिस इज इट्स फेवरेट प्लेस. मतलब ये जो जगह है, जो ये मैकबेथ का कैसल है, ये मार्टलेट का फेवरेट प्लेस है. समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट, that the heaven's breath smells boogly here means, and the heaven's air, breath means the heaven's air, it also boos the heart. और ये हमारे हार्ट को बिल्कुल ओवरवेल्म कर देती है. ओके, इट ओवरवेल्म्ड आवर हार्ट. ओके, हमारे हार्ट को क्या कर देती है? ये जो हवा है, ओके, ये जो ब्रीज चल रही है, इट ओवरवेल्म्ड आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट को ओवरवेल्म कर देती है. ओके, स्मेल्स बूगली है मीन्स इट ओवरवेल्म्ड आवर हार्ट. ओके, इट स्मेल्स लाइक अ बूग. ओके, नेक्स्ट, नो jutty, frieze, buttress, nor coins of vantage, but this word hath made his pendant bad and progressed cradle. Means here Benkyu says कि no jutty. अब ये जो jutty, frieze, buttress and coin ये सारे मैकबेथ के पैलेस के जगहों के नाम हैं. ठीक है, ये सारे किसके नेम हैं? ये सब मैकबेथ के पैलेस की जगह के नेम हैं. जटी, फ्रीज, ओके, बटरेस, नॉर फॉर्जिन, बेंटेज, कोइन ऑफ बेंटेज, ये सारी किसके नाम है? मैकबेथ के जो कैसल है, जो इन्वनस है, उसकी जगहों के नाम है. ओके, तो बेंक्यू कहते हैं दैट नो जटी मीन्स नो पिलर. जटी का मतलब होता है ना कोई पिलर. पिलर मीन्स जो खंबे होते हैं. ना पिलर, ना फ्रीज मीन्स ना ही कोई रॉक, ना ही कोई चट्टान. बटरेस मीन्स ना ही लाइक इट इज़ द प्रोजेक्शन
ऑन द वॉल, ओके, और ना ही कोई प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल, नॉर कोइंग, कोइन मीन्स नाइदर एनी कॉर्नर ऑफ वेंटेज, नाइदर एनी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग where this bird martlet has not made its nest and hang its egg and laid its egg, ओके, मतलब कहना चाह रहे हैं कि पूरे जहाँ भी देखो पूरे पैलेस पे मार्टलेट के लाइक घोंसले ही घोंसले हैं, और उन सब घोंसलों में उसने क्या रखे हैं, अपने एग्स को रखा है, अपने क्रेडल मीन्स उनके जो घोंसले हैं उन घोंसलों में उन्होंने अपने एग्स को रखा है, ओके। तो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं है जहाँ पे मार्टलेट ने अपने अंडों को नहीं रखा हो, ओके। देयर इजंट अ सिंगल प्लेस वेयर दीज बर्ड्स डिडंट मेक देयर नेस्ट टू स्लीप एंड टू ब्रीड। समझ आई बात यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी वेयर, अब यहाँ पे आते हैं, where they most breed and haunt I have observed the air is delicate। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये हमेशा ऑब्जर्व किया है, मैंने चीज़ देखी है कि जहाँ भी हवा जो होती है, जहाँ भी जो हवा होती है, जो ब्रीज होती है सबसे बढ़िया होती है, जहाँ भी जो डेलिकेट मीन्स नाइसेस्ट, ओके, जहाँ भी जो हवा होती है वो सबसे बढ़िया होती है, वहीं पे ये बर्ड जो है मार्टलेट ये अपना घोंसला बनाती हैं और अपने एग को ले करती हैं। समझ आई बात, ओके। आई होप बेंक्यू की स्पीच जो है वो समझ आई हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच है। बेंक्यू कहना चाह रहे हैं कि जो ये मार्टलेट हैं, मार्टलेट इज़ अ टाइप ऑफ अ वर्ड, ओके, मार्टलेट एक टाइप की वर्ड होती है। तो कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है, ओके, जहाँ पे मार्टलेट ने अपने नेक्स्ट को, अपने घोंसलों को नहीं बनाया हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है। कहाँ पर, मैकबेथ के कैसल में, मतलब पूरा मैकबेथ का कैसल जो है वो पूरे अंडों से भरा पड़ा है, पूरे घोंसलों से भरा पड़ा है मार्टलेट के। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि जो मैकबेथ का कैसल है वो कितनी अच्छी जगह पे सिचुएटेड है, क्योंकि ये जो चिड़िया होती है मार्टलेट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जहाँ भी हवा बहुत अच्छी होगी, जहाँ भी इन्वायरमेंट बहुत काम होगा, बहुत पीसफुल होगा, जहाँ भी मतलब हवा चलेगी, जहाँ भी बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पर ये अपने घोंसले को बनाएगी और अपने अंडों को ले करेगी। समझ आई बात। तो यहाँ पे बेंक्यू कहना चाह रहे हैं कि मार्टलेट एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये बताने के लिए कि जो मैकबेथ का कैसल है वो कितनी अच्छी जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। नाउ हियर एंटर लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ एंटर करती है। अभी ये सब कहाँ बात कर रहे थे, कैसल से बाहर। ये लोग कहाँ पर हैं, मैकबेथ का जो कैसल है इन्वर्नेस, उसके बाहर बात कर रहे थे, उसके गेट के बाहर बात कर रहे थे। तभी आती है लेडी मैकबेथ अंदर से, कैसल से, ओके। एंड डंकन सेज, अब डंकन जब उन्हें देखते हैं तो लाइक प्रेज करते हैं लेडी मैकबेथ को, ओके। नाउ डंकन सेज, सी आर ऑनर्ड हेड hostage, the love that follows us sometimes is our trouble, which still me thank us love, herein I teach you how you shall beat God, like I did us for your pains and thank us for your trouble. Here Duncan says the see our honorable hostage, our honored hostage is coming, okay। देखो लेडी मैकबेथ is coming, honored hostage means our mistress is coming, our lady Macbeth is coming। mistress क्यों कह रहे हैं, because they have came as a guest, okay, and they have came to their home, so that's why he is calling, like Duncan is calling her mistress, because वो अभी कहाँ कैसे आए हैं, एक mistress, एक गेस्ट के रूप में आए हैं डंकन। तो according to this lady Macbeth is his who guest, okay, like lady Macbeth, Duncan is the guest of lady Macbeth, okay। तो इसलिए कह रहे हैं see our hostage, our lady Macbeth is coming, okay। the love that follows us sometime is our trouble, okay।
which still be thanked as God. Herein I teach you means the service which you have gave me, okay, which you have gave me, the service which they do for me make me shame sometime, but still I thank to God for your this love. कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी आप मुझे जो सर्विस करती हैं, आप मैकबेथ, कभी कभी आप मेरी जो सेवा करते हैं वो मुझे शेम फील कराता है, पर फिर भी मैं गॉड को थैंक यू कहता हूँ फॉर दिस लव विच यू हैव गेव मी, ओके, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, ओके, उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, हियर इन आई टीच यू हाउ यू शैल बिड गॉड reward us for your pains, means here I will tell you, here I will teach you, means here I will tell you that how you can reward the God for your effort, means मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जो एफर्ट्स हैं मेरे लिए, आपने जो अभी तक एफर्ट्स किए हैं मैकबेथ ने आपने मेरे लिए, मतलब क्या एफर्ट्स किए हैं, लाइक देखो सबसे पहले तो मैकडोनाल्ड वर्ल्ड को मारा मैकबेथ ने, फिर क्या नाम है थैन ऑफ काउडर को मारा, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें मैकबेथ ने मतलब हर बार किंग डंकन को बचाया है। तो इसलिए किंग डंकन कह रहे हैं कि आपने और मैकबेथ ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए मैं गॉड से आपके लिए मतलब आई रिवॉर्ड फॉर योर एफर्ट, मैं गॉड से कहूँगा कि वो आपके लिए कोई रिवॉर्ड ज़रूर दे, वो आपके लिए कोई गिफ्ट ज़रूर दे फॉर योर दिस एफर्ट विच यू हैव डन फॉर मी, okay, and thank us for your trouble, and thank you for your this pain, for your this trouble, okay. After that, now Lady Macbeth says, she said, all our service in every point twice done and then done double, but poor and single business to contend against the those honors deep and broad with wherewith your master your like majesty loads our house, मतलब कहना चाह रही हैं कि अगर हम अपनी सर्विस को भी डबल कर दें, अगर हम अपने एफर्ट्स को, अपनी ड्यूटी को भी डबल कर दें, ओके, और फिर लाइक उसे हम अगर 4 टाइम्स भी कर दें, ओके, here they are saying in every point twice done and then done double, अगर हम अपनी सर्विस को डबल कर दें और फिर दोबारा डबल कर दें, मतलब हम अपनी सर्विस को अगर 4 टाइम्स भी कर दें, समझ आ रही बात। लेडी मैकबेथ कह रही हैं अगर हम अपनी सर्विस को 4 टाइम्स भी कर दें तब भी जो आपने हमें ऑनर दिया है, जो आपने हमें रिस्पेक्ट दी है, जो आपने हमें इतना बड़ा लाइक टाइटल्स दिए हैं जो आपने मेरे हस्बैंड को, उसके कंपेयर में वो कुछ भी नहीं है। मतलब चाहे मैं कुछ भी कर लूँ आपके लिए, चाहे मैं कितनी भी आपकी सेवा कर लूँ, कितनी भी आपकी सर्विस कर लूँ, आपने जो मेरे हस्बैंड को जो लाइक ऑनर दिया है, जो थैन ऑफ काउडर का टाइटल दिया है आपने मेरे हस्बैंड को, उसके आगे ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ओके। सो हियर शी इज सेइंग दैट अगर हम अपनी ड्यूटी को हम अगर 4 टाइम्स भी कर दें, सो इट इज़ नथिंग कंपेयर टू द ऑनर यू हैव प्राउड टू आवर फैमिली, ओके। आपने जो मेरी फैमिली को जो ऑनर दिया है, ओके, योर मैजेस्टी लॉर्ड्स आर होम मीन्स आपने जो हमारे होम को, हमारी फैमिली को, होम मतलब हमारी फैमिली को जो ऑनर दिया है, मेरे हस्बैंड को जो थैन ऑफ काउडर का टाइटल दिया है, उसके आगे ये सर्विस तो कुछ भी नहीं है, चाहे मैं इसे 4 टाइम्स ही क्यों ना कर लूँ, उसके आगे सर्विस कुछ भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट, for those of old, okay, for those of old and the late dignities heaped up to them we rest your hermits, means आपने जो मुझे पुराने टाइटल्स दिए मेरे हस्बैंड को, मीन्स द थैन ऑफ ग्लैमिस का जो टाइटल दिया है, ओके, और आप जो नए टाइटल दिए हैं, मतलब जो थैन ऑफ काउडर का टाइटल दिया है, जो आपने इतने बड़े उपकार किए हैं हम पर, आपने इतने बड़े बड़े टाइटल्स जो मेरे हस्बैंड को दिए हैं, उसके लिए आई बी रेस्ट योर हर्मिट्स, मीन्स बी ऑलवेज बी योर ग्रेटफुल, ओके, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। समझ आई बात? लेट्स सी नेक्स्ट। देन डंकन सेज, वेयर्स द थैन ऑफ काउडर? We caused him at the heels and had a purpose to be his prover.
pervert, but he writes well, and his grace love sharp as his spur hath held him. Means, where's the Than of Cawdor? Where's Macbeth? Okay, we followed closely after him. We caused him at the heels. Means we followed him, like we followed closely after him. हम means हम उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे, हम मैकबेथ के पीछे ही चल रहे थे. And has a purpose to be his preober, and we had a purpose to be a like preober. To be a preober means to be a provider of goods. Okay. And but he writes well, and his great love sharp, and his spur will hatch hold with him. Means to be his preober, but he writes well. Means he is a provider of good. Means वो goods को, वो अपने अच्छे कर्मों को तो सेंड करता है. ओके, और ये सब किस लिए है? ओके, why? But he writes well, and his great love sharp in his spur. Means जो आपका जो मतलब मैकबेथ का लव है for you lady Macbeth. Okay, great love means here you want to say where it is, yep. अब ये जो ग्रेट लव है आपके लिए लेडी मैकबेथ, इट इज़ लाइक अ स्पर. Okay, as his spur means it is like the sharp point projection on the shoes. Okay, जो shoes होते हैं उनके अंदर जो sharp projection होती है, जो wheels होते हैं, उन्हें कहा गया है spur. Okay, तो कहना चाह रहे हैं डंकन that your love for Macbeth is like and his spur has hold him. मतलब कहने चाह रहे हैं कि जो आपका प्यार है मैकबेथ के लिए, और उसके जो शूज़ हैं, जो उसने शूज़ पहने हैं, ओके, उसकी वजह से वो जो है हमसे भी आगे निकल आएगा. He'll reach like early than us. Okay, to his home before us का मतलब है he'll reach early than us. उसने जो शूज़ पहने हैं और जो लव है, जो लव आपका है उसकी तरफ, मतलब जो आप एक वाइफ होके आप उससे इतना प्यार करती हैं. ओके, आपको जो लव है, आपका जो प्यार है मैकबेथ के लिए, और उसके जो शूज़ हैं, उसने जो शूज़ पहने हैं अपने व्हील्स वाले, उनसे वो मतलब इन दोनों कंपोनेंट से वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ जाएगा इधर. कहाँ पे? इन्वर्नेस में. ओके, Fair and noble hostess, we are your guests tonight. Your noble hostess means Lady Macbeth. Okay, we are your tonight's guest. हम आज रात के आपके कौन हैं? गेस्ट हैं. ओके, आज रात के हम आपके गेस्ट हैं. आज रात हम खाना आपके घर ही खाएंगे. ओके, मैकबेथ लाइक डंकन कह रहे हैं कि फेयर एंड नोबल हॉस्टेस मीन्स द नोबल एंड द गुड हॉस्टेस, गुड एंड नोबल हॉस्टेस, वी आर योर टुनाइट्स लाइक गेस्ट, वी आर योर टुनाइट्स गेस्ट. हम आज रात के आपके कौन हैं? गेस्ट हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. नाउ लेडी मैकबेथ सेज, now she says, your servants ever have theirs themselves, and what is theirs in compt to make their audit at your highness pleasure still to return your own. Means your servant ever, we are your servant master. लेडी मैकबेथ कह रही है कि हम आपके ही सर्वेंट हैं. ओके, वी आर योर सर्वेंट्स, हम आपके ही सर्वेंट हैं. Have theirs themselves, and what's theirs is copped to make their audit at your highness pleasure still to return your own. Means जो कुछ भी हमारा है वो आपका दिया हुआ ही तो है. जो कुछ भी हमारा है, ये जो इनवर्नेस है, इसके अंदर की जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इसके अंदर की जितनी भी ईजफुलनेस है, जितनी भी पीसफुलनेस है, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है. तो इसलिए ये सब कुछ हमारा नहीं है, ये आपका है. मीन्स आप हमारे इन्वर्नेस में नहीं आए हैं, आप अपने इन्वर्नेस में आए हैं. समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं लेडी मैकबेथ? यहाँ पे कहना चाह रही हैं कि ये सब कुछ दिया हुआ तो आपका ही है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये सब हुआ तो आपका ही. जैसे हम कभी कभी भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान ये सब आपका ही दिया हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये आपका ही दिया हुआ है.
तो ऐसा ही लेडी मैकबेथ कह रही है कि ये जो इन्वर्नेस है, ये जो गार्डन है और ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपकी ही है, ये हमारी नहीं है। हमसे पहले किसकी है? आपकी है, क्योंकि ये आपने ही तो हमें दी है। समझ रहे हैं? और यही ओके एंड स्टिल टू रिटर्न योर ओन, और आज हम ये चीज़ आपको लौटा रहे हैं। लौटाने का मतलब आज हम आपको आपके ही घर में डिनर कराएंगे। लौटाने का मतलब ये नहीं कि वो आप इन्वर्नेस छोड़ के जा रहे हैं दोनों, वो बहुत चालाक हैं, वो सिर्फ बटरिंग कर रहे हैं। समझ आ रही बात? वो सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक बटरिंग कर रहे हैं ऑन डंकन। ओके, वो इन्वर्नेस को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा है वो सबसे पहले तो आपका है। ओके, नाउ डंकन सेज गिव मी योर हैंड, ओके, conduct me to mine host, we love him highly and shall continue our graces towards him by your leave hostess, means conduct me your hand, give me your hand means give me your hand means bring me your hand, give me your hand means like मुझे अपना हाथ दो लेडी मैकबेथ, ओके, आप मुझे अपना हाथ दें, ओके, and conduct me to my host and bring me to the Macbeth, और मुझे मैकबेथ की तरफ ले चले। ओके, टू माई होस्ट मीन्स, होस्ट का मतलब होता है मास्टर। देखो समझो, होस्ट का मतलब होता है मास्टर। अब यहाँ पे मास्टर मैकबेथ इसलिए क्योंकि जो डंकन है वो कैसे आए हैं? एज अ गेस्ट आए हैं उनके घर पे, तो ऑब्वियसली जो मैकबेथ हुए वो तो इन्वर्नेस के मास्टर हुए ना, तो इसलिए कहते हैं डंकन दैट प्लीज़ लाइक टेक मी टू माई मास्टर मैकबेथ, मुझे अपने मास्टर मैकबेथ की तरफ ले चलो। ओके, वी लव हिम हाईली एंड आई लव हिम वेरी मच, आई लव हिम डियरली, हाईली मीन्स मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके, एंड शैल कॉन्टिन्यू आर ग्रेसेस टुवर्ड्स हिम वाई योर लीव होस्टेस, ओके, एंड आई शैल कॉन्टिन्यू टू फेवर हिम वेन एवर यू आर रेडी मैकबेथ, ओके, वेन यू आर रेडी लेडी मैकबेथ मीन्स here he want to say that and shall we continue our graces towards him by your leave hostess, means and continue to show me his favor, okay, and I shall continue to favor him whenever you are ready, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बस मुझे बता दीजिए, मैं हमेशा मैकबेथ के साथ हूँ। ओके, एंड बाय योर लीव हॉस्टेस, नाउ चलिए लेट्स गो इनसाइड द इन्वर्नेस, लेट्स गो इनसाइड द पैलेस एंड देयर द सीन एक्सुएंट। ओके, तो हमने इस सीन को भी ख़त्म कर दिया है। आई होप ये समझ आ गया हो आपको। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्यों आयरनी है? क्योंकि डंकन ने क्या कहा था? सी दिस कैसल हैज अ प्लीजेंट सीट, द एयर निम्बली एंड स्वीटली रेकमेंड्स इटसेल्फ ऑन टू आवर जेंटल मीन्स ये जो पैलेस है बहुत ही ज़्यादा शांत जगह पे सिचुएटेड है और इसका जो अरोमा है वो हमारे काम सेंसेस को अरोज कर रहा है, वो हमारे सेंसेस को और ज़्यादा एक्टिव बना रहा है। समझ रहे हैं? मतलब डंकन उस जगह की तारीफ़ कर रहा है जो उसका काल बनने वाला है, जिस जगह पे उसका मर्डर होने वाला है उसी जगह की वो तारीफ़ कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक आयरनी है, ठीक है? मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज एन आयरनी, दिस सेंटेंस इज फुल ऑफ आयरनी। समझ आ रही बात? ये पूरा सेंटेंस किससे भरा हुआ है? आयरनी से भरा है। दिस इज आयरॉनिकल इन नेचर, आयरॉनिकल sentence. Okay, so with this we come to an end of our this scene as well. Let's see the next last scene, okay, very soon. So that's it, bye bye, stay tuned for more videos, and if you love this video please like the video, subscribe the channel if you haven't do it yet, and that's it, bye bye. Okay, we'll see the last scene, act 1 scene 7 very soon. Till then, bye bye, take care guys.